First, I want the people of the rest of India to know that this is not about separatism. It is not about any break away or disbelief in the nation of India. It is more to do with corruption and lack of development. Nagaland is the most corrupt state in India, and it is due to this corruption that there is development only on paper. And the eastern part of Nagaland suffers more than the rest of Nagaland. So they have been demanding a separate state, FNT, Frontier Nagaland Territory, and it is in furtherance of their demands that they decided to abstain from voting. Yeah, I'll translate. I will translate it for you, Yes, Gautam ji. जी yeah. अभी मैं दर्शकों के साथ ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि ये मामला अलगाव का बिल्कुल नहीं है। ये मसला करप्शन का है, मतलब भ्रष्टाचार का है। ये मामला विकास के साथ में जुड़ा हुआ है। और असल बात ये है कि जो ईस्टर्न रीजन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। उनको वहां पर विकास नहीं हुआ है। इसलिए 6 जो जिले हैं उसके लोग मिल करके अलग से एक राज्य चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात को रेखांकित करने का काम किया है कि इसका अलगाव से कोई संबंध नहीं है और ये मुद्दा वहां के लोगों के लिए भ्रष्टाचार और विकास के साथ जुड़ा है। नाउ यू कैन कंटिन्यू काउत जी, प्लीज। So the present, I believe that the central government has given them some offers short of statehood, increase in the representation to the state assembly, and independent financial powers. But again, there are rumors that the state government is interfering in this process. So that is why this is another contributing reason to the boycott of the Lok Sabha election. So the fault seems to lie with the state government, not with the Eastern Naga people or with the center. Yes, please. जी राउत जी कह रहे हैं कि असल में केंद्र सरकार ने इनको आश्वासन दिया था अलग राज्य के लिए और एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी एक स्वतंत्र वित्तीय उसके अधिकार होंगे। लेकिन उस एश्योरेंस को, उस वायदे को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसलिए ये जो है वोटिंग लोगों ने नहीं किया है। इसका अलगाववाद से कोई संबंध नहीं है। जी प्लीज कंटिन्यू। So now the question is, why is the center always ignoring the rampant corruption that is going on in Nagaland? The level of corruption is unbelievable. Even in the places where elections were held in the rest of Nagaland, they purchased the village councils, the Gaubaras. In Nagaland, we have the system called the Gaubara. So they purchased them and they cast all the votes in favor of the ruling party. So the people in Nagaland, we find ourselves alienated from the Indian constitution and the Indian laws, because it is not, it is applied selectively if applied at all. And anyone who has any knowledge of Nagaland knows that corruption is so rampant, it is so open, and that is why many people are disillusioned. जी काउते जी ये कह रहे हैं कि असल में मसला भ्रष्टाचार का इस हद तक पहुंचा हुआ है कि यहाँ पर जो है नागालैंड के अंदर जो विलेज काउंसिल होती है, परिषद होती है गांव की, पूरे के पूरे लोगों को खरीद लिया जाता है और वही पूरे गांव की ओर से पूरा वोट डाल देते हैं।
तो इस तरीके का तो हम लोग जो है हम चाहते हैं कि भारत के संविधान का, भारत के संवैधानिक प्रावधानों का, भारत के संवैधानिक अधिकारों का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उसका हम लोगों को लाभ मिले। लेकिन करप्शन के चलते वो कुछ भी लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये हम लोगों की शिकायत है। यस प्लीज कंटिन्यू कविता जी। A few weeks back, our deputy chief minister, who is also the home minister, he was recorded saying that on the day of polling, the villagers, all of you go to your paddy fields, your kheti, and let the village council cast your votes. So that is the extent to which uh, all this illegality is practiced in Nagaland. You तो see जी the बता रहे हैं road. कि आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि वहां के जो गृह मंत्री और डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि आप लोग अपना खेती कीजिएगा, आप लोग अपना काम कीजिएगा, जो विलेज काउंसिल के जो लोग हैं वो अपने आप आपका वोट डाल देंगे। ऐसा आपने कहीं पर नहीं सुना होगा, ये केवल नागालैंड में ही होता है और ये बाकायदा एक भ्रष्टाचार का एक पराकाष्ठा है। यस प्लीज कंटिन्यू And जी। this same deputy chief minister and home minister, during the 2018 election, he was photographed with 8 voting slips, and he was going to cast all the 8 votes himself. But this is a very common practice in Nagaland. The father will cast the votes of all the family members, or the village council, as earlier discussed. Village council will cast the votes, and that is why you see very high margin of polling in Nagaland. You will see 80%, 90%, and all proxy votes will be cast. All those who have not come, after the genuine voters have stopped coming, then all the remaining votes will be cast. जी कविता जी And बता रहे हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि ये जो गृह मंत्री है और ये जो डिप्टी सीएम है, पिछली बार के इलेक्शन के अंदर इन्होंने 8 वोट इनके हाथ में थे और वो फोटो जो है सब जगह पे छपा था और वो सब लोगों के सामने था और उन्होंने कहा कि ये कोई अचरज की बात नहीं है। यहाँ पर एक तरीका है, परिवार का एक व्यक्ति जो है पूरे परिवार के लोगों के वोट डाल देता है, या जो एक गांव का जो परिषद है उसके जो प्रमुख हैं वही पूरे गांव का वोट डाल देते हैं। तो इस तरीके का लोकतंत्र यहाँ पर नागालैंड में प्रैक्टिस किया जाता है। तो यही सब मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है, गुस्सा है, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला है। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग कविता जी? और इन द नेक्स्ट Just I would like to add, that the young people of Nagaland, what has happened in the past is different, but the young people of Nagaland are slowly understanding how much we profit by being part of India, but how we are being deprived of the benefits by those in power. But it is very difficult for them to raise their voices. So I would like your audience to understand that we consider ourselves a very integral part of India. We would like to do everything to contribute to the growth of India, but those in power are the problem. So that is what I would like to convey to the audience. जी कविता जी ये कह रहे हैं कि मैं युवाओं की ओर से ये कहना चाहता हूं कि नागालैंड का युवा देश के लिए अपना योगदान करना चाहता है, लेकिन उसकी कोई किसी स्तर के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। हम भारत का अपने आप को एक अभिन्न अंग मानते हैं, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकार पूरे देश के युवाओं को मिला है वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है और ये हम लोगों का मुख्य ग्रीवियंस है। सो कविता जी थैंक यू वेरी मच। we'll come back to you again and if you can listen to other panelists also। मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दिया था ENPO, इसके जो प्रेसिडेंट हैं तापेक्यू संगतम, इनसे मेरी बातचीत हुई, फोन से बातचीत हुई, क्योंकि वो ऐसे इलाके के अंदर थे जहां पर कि उनका जुड़ पाना संभव नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात तो ये आप स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि हमने बहिष्कार नहीं किया है, हमने एब्सटेन किया है, हमने अपना मत नहीं डाला है, हम बहिष्कार नहीं करना चाहते। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमसे पिछले दिसंबर में अमित शाह की उपस्थिति के अंदर गृह मंत्रालय ने कमिटमेंट किया था, और वो कमिटमेंट जिसके बारे में अभी काउतो जी ने हमको बताया कि उन्होंने ये कमिटमेंट हमसे किया था कि हम 6 जो है डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके, 6 जिलों को मिला करके हम आपको एक पृथक राज्य हम देंगे। और उन्होंने कहा कि हम कोई पृथक राज्य के लिए भी बहुत ज्यादा हम इंसिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक इस तरीके का अरेंजमेंट हम चाहते थे ताकि हम लोग अपने निर्णय ले सकें और विकास की धारा जो है उसको वो हमारे इलाकों तक पहुंच सके। तो उन्होंने ये वाली बात स्पष्ट करने का काम किया। तो मैं दर्शकों के लिए ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात काउतो जी ने भी बार बार एम्फेसिस करने का काम किया है कि ये कोई पृथकतावादी आंदोलन नहीं है, ये कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो विकास नहीं हो पा रहा है। एक ईमानदारी के साथ में राज्य चले और राज्य के अंदर इन इलाकों के लोगों को भी विकास का मौका प्राप्त हो, ये उनका एक सवाल है। और जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे ये कहा है कि वो हमसे बहुजन संवाद से अलग से बातचीत करेंगे, जब भी कभी वो इस तरीके का जब नेट वाली जगह पर आएंगे तब वो हमसे जरूर बात करने का काम करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आराधना जी इसको आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। हमारे साथ में प्रोफेसर आनंद जी हैं, उनका बहुत लंबा जो है अनुभव है और जेपी की एक बहुत बड़ी विरासत है नागालैंड को लेकर के, उसको लोग बार बार याद करते हैं। तो अगर प्रोफेसर आनंद जी एक इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अगर अपनी बात रखें, सोशल सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में बात रखें, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आप आराधना जी कंटिन्यू कीजिए। जी सर आप म्यूट हैं। प्रोफेसर आनंद आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ सर। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। स्पीकर ऑन कर लीजिए प्रोफेसर साहब। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे लगता है कि दोनों ही चले गए हैं। जो है मैं अनुरोध करूंगा। जी आवाज आ रही है? आवाज माइक अब अनम्यूट हो गया। जी बोलिए। जी बोलिए प्रोफेसर साहब। हम लोग हेलो, असल में प्रोफेसर साहब बनारस में हैं और बनारस के अंदर भी अगर डिजिटल इंडिया फेल हो जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, तो फिर बाकी देश के जनता का क्या होगा और बाकी सबका क्या होगा। मुझे लगता है कि वो बाद में हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं अनुरोध करता हूं रविशंकर रवि जी से, जो कि संपादक हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव है, पूरे पूर्वोत्तर के ऊपर वो नजर रखते हैं। अभी आपने काउतो जी की बात सुनी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आप ये जो एक डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है रविशंकर जी? जी काउतो जी ने हमारे नागालैंड के जो साथी हैं और उन्होंने जिस ढंग से और साफगोई से बात रखी कि ईस्टर्न नागालैंड में हो क्या रहा है, आज भी
अगर हम पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हुआ है, काफी सारी योजनाएं इंप्लीमेंट हुई सही में, लेकिन नागालैंड की स्थिति बुरी। नागालैंड से दीमापुर से कोहिमा के बीच 4 लेन सड़क बनाने में 4-5 साल लग गए, जबकि उसके लिए पैसा सैंक्शन था। कोहिमा से अगर हम मुकुकचुंग जाना चाहें तो आप देख लीजिए कि सड़क की क्या हालत है। दावे तो बहुत किए गए हैं, इसीलिए ईस्टर्न नागालैंड मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंडिया है। वहां की सड़कों की हालत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो लोग असम के जो सीमावर्ती इलाके के हॉस्पिटल्स हैं, डिब्रूगढ़ में है, शिवसागर में है, उधर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, वह ईस्टर्न नागालैंड के लोगों को नहीं मिलती है। क्योंकि मैं मुकुकचुंग कई बार गया हूं उस इलाके में और अंदर के इलाके में भी गया हूं, तो मैंने देखा है कि क्या स्थिति है। अच्छा, पैसे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रही है, प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि वो कागज पर योजनाएं बन रही है और कागज पर योजनाएं खत्म हो गई। पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर एंड फ्यू अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लीडर्स के बीच जो एक नेक्सस है, वहां पर पैसा खर्च। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए? वो जा ही नहीं सकता है, वहां पर पहुंचेगा ही नहीं वहां पर। तो ये सारा पैसा ये लोग खा पी जाते हैं। अब नागालैंड की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो बदलाव चाहती है। पहले बहुत सालों तक लोग नागालैंड की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए थे, अब वो देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाई एजुकेशन लेकर वो अपने इलाके में लौट रहे हैं। और जब वहां की स्थिति देखते हैं तो कि पूरे देश में विकास हो रहा है और हमारे अपने इलाके का विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये जो मांग है, ये उन्होंने सही कहा, उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है, खुद को वोट देने से रोका है। इसमें कोई अलगाववाद की बात ही नहीं है। और उनको क्या चाहिए? और एक और ऑटोनॉमी चाहिए। ये अलग कोई नागालैंड से अलग कोई राज्य की भी बात नहीं है। राज्य की बात भी होगी तो नागालैंड के ज्यूरिडिक्शन में ऑटोनोमस स्टेट की बात हो रही है, ऑटोनॉमी की बात हो रही है कि हमें आप तय करने दीजिए कि हमारे इलाके में क्या योजना इंप्लीमेंट होगी, कैसे होगी, उसकी निगरानी। देखिए, कुल मिलाकर इसके पीछे है विकास। उस पार्ट के लोग भी देश के विकास का सुख लेना चाहते हैं। लोग जो ये लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? और ये इन्होंने बहुत सही बात की, चाहे बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, ईवीएम में भी एक एक आदमी 100-100, 50-50 वोट देता है, क्योंकि पूरी मिशनरी वहां मिली रहती है, अपोजिशन का कोई रहता नहीं है वहां पर। तो और ये सच है, इन्होंने जो कहा है वो इसी से पता चलता है कि पूरी जो काउंसिल है गांव की, वो एकजुट है कि किसको वोट देना है वो पहले से ही तय है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इसके पीछे डेवलपमेंट का मामला है, लोग बुनियादी सुविधाएं चाह रहे हैं, लोग इसके पीछे कोई बहुत राजनीतिक कारण नहीं। और ये देखिए कि आज के मीडिया का, नेशनल चैनल का ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि 20 विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख मतदाता अपने घरों से वोट देने नहीं निकले। ये जो एकजुटता इनकी दिखी विकास के पक्ष में, करप्शन के खिलाफ में, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इन सब छोटे छोटे विषयों और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये देश का एक ऐसा मुद्दा है कि किस तरह से हम विरोध अपना प्रकट कर सकते हैं। और मैं तो रविशंकर जी, भाइयों का मैं थोड़ा स्पेसिफिक, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल चाहता हूं। मुझको जो ईएनपीओ के अध्यक्ष ने कहा कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योरेंस किया था, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दिया उसका लेटर भी उन्होंने सीएम को लिखा। सीएम ने उस लेटर का आज तक जवाब नहीं दिया है, जबकि सीएम ने, जब इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो सीएम ने कहा कि हम इनकी डिमांड का समर्थन करते हैं। तो एक तरफ तो सीएम इनकी डिमांड का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो यस लिख के भेजना चाहिए
कि ठीक है, आपका जो प्रपोजल है, जो आपने प्रपोजल को स्वीकार किया है ईएनपीओ के, हम उस प्रपोजल को भी हम भी स्वीकार करते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं, ये लिख के देने को सीएम तैयार क्यों नहीं है? तो ये तो पूरा पाखंड हुआ ना, कि एक तरफ तो वो एश्योर कर रहे हैं आंदोलनकारियों को कि हाँ हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के नहीं दे रहे, या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक पाखंडपूर्ण रवैया है कि उन्होंने दबाव डाल के रखा होगा कि अगर सीएम तुमने लिख के दिया तो तुम चले जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बीजेपी के साथ चल रही है, उनकी इच्छा से चल रही है, उनकी दया से चल रही है ना? तो ये भी एक हो सकता है। तो ये दोनों चीजों में से आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है? नहीं, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि रियो की जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की दया से नहीं चल रही है। उनके पास है अपनी इतनी स्थिति कि वो अपनी सरकार स्वतंत्र ढंग से चला सकते हैं, लेकिन नागालैंड जैसे राज्य में कोई भी सरकार बिना केंद्र के मदद से, केंद्र के वित्तीय मदद से नहीं चल सकती है, उनको ग्रांट चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, रियो जो है भाजपा के साथ मिलकर पावर को एंजॉय कर रहा है। वेस्टर्न नागालैंड और ईस्टर्न नागालैंड आप देख लीजिए, वेस्टर्न नागालैंड की स्थिति और ईस्टर्न नागालैंड की स्थिति। ईस्टर्न नागालैंड म्यांमार की सीमा को टच करता है उस तरफ, और वहां की स्थिति देख लीजिए, इधर की स्थिति देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। वहां पर मेडिकल की सुविधाओं का देख लीजिए, और वेस्टर्न पार्ट का देख लीजिए, कोहिमा हो, दीमापुर हो, और ये सारे इलाके हैं। तो रियो भी इसमें खेल कर रहे हैं। और उस समय चूंकि एक आंदोलन चल रहा था ईस्टर्न नागालैंड में, और मुझे जहां तक याद है कि सेना की गलतफहमी से वहां पर कई लोग मारे गए थे सेना की गोली की वजह से, और वहां एक बड़ा आंदोलन वहां पर चल रहा था। किसी तरह से गृह मंत्रालय इन सारी चीजों को शांत करना चाहता था, हालांकि कार्रवाई भी हुई, उस पर सख्त कार्रवाई भी हुई, और उस क्रम में गृह मंत्रालय ने यह वादा तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें यह लग रहा है कि इससे हमारे दूसरे जो नागालैंड के दूसरे हिस्से के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, और यह मामला इन्होंने लटका दिया। जबकि यह सरकार कहती रही है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, लेकिन नागालैंड में वो स्थिति दिख नहीं रही। एग्जैक्टली, आपने ठीक जवाब दिया है। फिर से रविशंकर जी आपके पास आएंगे। प्रोफेसर आनंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब अपनी बात रखें। यहाँ पर काउतो जी की बात सुनी आपने, रविशंकर जी की बात आपने सुनी। जी प्रोफेसर साहब। सुनीलम जी, आपकी इस चर्चा ने देश की आंख खोलने का काम शुरू किया है। नागालैंड भारत का एक सीमांत प्रदेश है, जहाँ के लोग अपनी निर्मलता के लिए, अपनी सज्जनता के लिए, अपने भोलेपन के लिए दुनिया में मशहूर हैं। इस इलाके में पहले सेना के जरिए दबाने का काम किया जाता था, जिसके समाधान के लिए, जिसके प्रतिवाद के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आज से 50 साल 60 साल पहले नागालैंड पीस मिशन की स्थापना की थी। ठक्कर बापा जैसे लोग वहां जाके भारत और शेष नागालैंड के बीच में मित्रता का निर्माण करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। मेरा सौभाग्य था कि मैं नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 बरस एक प्रतिनिधि के तौर पर उनकी चयन समिति में जाता था, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और बनारस विश्वविद्यालय में नागालैंड के विद्यार्थियों को पढ़ाने का हमें मौका मिला। नागालैंड का ये जो आंख खोलने वाला, चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, वो ये साबित करता है कि उत्तर पूर्व सीमांत के लोग छले जा रहे हैं, और उनके मन में, जैसा काउतो जी ने कहा, किसी भी तरह से भारत के प्रति कोई अलगाव की भावना नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके स्वराज के सपने को पूरा करने में आनाकानी करते रहे हैं। भ्रष्टाचार ने पूरी सत्ता व्यवस्था को जर्जर कर दिया है। तो आज आपको, हमको नागालैंड के इन 6 जिले के लोगों को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट के मौके पर देश को अपनी तकलीफ से रूबरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि काउतो जी ये कह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो
न तो भारत से अलग देश चाहते हैं, न हम भारतीय संविधान के बाहर कोई समाधान चाहते हैं। हम तो स्वराज यानी आर्थिक नवनिर्माण चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं और एक सुशासन चाहते हैं। यही तो पूरा भारत चाहता है। जो बात खुल गई आज वो ये कि भारत सरकार ने पिछले दिनों, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इनको कुछ आश्वासन दिए थे। उन आश्वासनों का नागालैंड सरकार का उप मुख्यमंत्री भी बता रहा है कि उसका कोई विरोध नहीं है। अगर राज्य सरकार का कोई विरोध नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री को यह आश्वासन, ये मांग पत्र दिया जा चुका है और ये महीनों से चल रहा है, तो आज तक इसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र होते तो तत्काल सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल नागालैंड जाता, इन 6 जिलों के लोगों से मिलता और पूछता कि आपकी तकलीफ क्या है। दूसरे, अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र होते तो तत्काल गृह मंत्री को या तो इसकी सफाई देनी पड़ती देश के मीडिया के सामने या इस्तीफा देना पड़ता। ये देश की एकता का सवाल है, ये लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल है और नागालैंड के लोगों की धीरज की हम परीक्षा न लें। हम इनका सम्मान करें, इनका सहयोग करें, इनके संवाद को पूरे देश को फैलाएं। आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो गई कि 6 जिले में एक व्यक्ति भी वोट देने के लिए नहीं आया? इसका मतलब है कि इनका सब्र का बांध टूट रहा है और इन्होंने चुनाव के इस मौके पर मतदान न करने का निर्णय करके देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। और जो हमारी राष्ट्रीय एकता में आस्था रखने वालों की जमात है, लोकतंत्र का भरोसा करने वालों की जमात है, उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि पूरे देश को नागालैंड के इन 6 जिलों की तकलीफ का साक्षात्कार कराएं। और मैं आशा करता हूं कि इस संगठन के मुखिया से जो आपने बात की वो बहुत प्रशंसनीय काम है। जल्दी से जल्दी उनको भी हम बहुजन संवाद का मंच उपलब्ध कराएं, जिससे दिल्ली में और कोहिमा में जो दूरी है, कोहिमा में और इन 6 जिलों में जो दूरी है वो खत्म हो, देश की एकता पर आया ये संकट टले और लोकतांत्रिक समाधान की तरफ हम बढ़ सके। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर आनंद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ककशा जी, ये जो प्रधानमंत्री जी हमेशा मोदी जी की गारंटी की जो बात प्रचार प्रसार इस बात का हो रहा है, तो सरकार जिस तरीके से जनता के बीच अपनी बातों को और रखती है, चाहे घोषणा पत्र के माध्यम से रखती है, जब वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती तो हमें नागालैंड जैसे परिणाम दिखाई देते हैं। तो नागालैंड में जो घटना घटी उसके बाद चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को देश में जो इस तरह के घोषणा पत्र बनाते हैं, जो इस तरीके की गारंटी देते हैं, जिनको पूरा नहीं करते, उनको चेत जाना चाहिए। उनके लिए एक चेतावनी है। ककशा प्रवीण जी, आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधना जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो नागालैंड के लोगों को बहुत बधाई दूंगी। ये बहुत ही ब्रेव स्टेप था उनका, क्योंकि 2014 से हम इस सरकार की जो पूरी लोकतांत्रिक नीति को खत्म करने की जो एक साजिश है उसको नाकामयाब इन्होंने किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कई फिल्मों के माध्यम से, चाहे हम लोगों ने चक दे इंडिया देखा हो, चाहे मणिपुर का जब मुद्दा आता है, तो ये जो पूरा मणिपुर वाला साइड और ये पूरा जो एरिया है, तो इसको जो एक अलग देश से अलग, हमारे देश के ही लोग जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं तो इस देश को अलग देश के बच्चे मानते हैं, इस स्टेट के बच्चों को। तो ये खबर जो अभी हमने बाकी सभी लोगों से हम लोग ने सुनी कि पहले से भी बहुत सारे कितने कष्ट होंगे जो ये मुद्दा सामने आया, लेकिन कभी मीडिया में हम लोगों ने अभी तक इसकी कोई खबर नहीं सुनी थी। कल जब अचानक ये खबर आती है कि नागालैंड के 6 जिले से के लोगों ने बहिष्कार किया और एक भी लोगों ने वोट नहीं डाला, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये जाहिर सी बात है, अभी जितने भी पूर्व वक्ता ने बताया कि पहले से वहां पर कितने कष्ट में लोग
थे, कितनी तरह की वार्ता गृह मंत्री से चली, उसके बावजूद इनके मुद्दों को नहीं समझा गया और लोकतंत्र के एक तरह से 2014 से लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से हम लोग लगातार हर 5 साल पे वोट होता है और हम उनकी उसी लोकतांत्रिक वोट के अंतर्गत हम एक ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, सारी चीजें जानते हुए भी। ईवीएम का मुद्दा है या बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी हमारे बीच में बाकी लोगों ने भी बताया कि किस तरह से वोट की राजनीति है और वोट को मतलब लोकतंत्र में तो बहुत ही मुझे शब्द नहीं मिल रहे इस बात को बोलने के कि लोग ये कह रहे हैं कि आप खेती बाड़ी कीजिए और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन आपका वोट डाल देगा। और ये पूरे देश में होता है, ये सिर्फ नागालैंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा ही होता है। मैं तो कहूंगी कि इससे प्रेरणा लेते हुए सभी देश, अब पूरे देश के स्टेट में इस चीज को लागू करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरह से ईवीएम का खेल हो रहा है और ईवीएम से जिस तरह से ये लगातार जीतते चले आ रहे हैं, तो हमें ऐसे ही कदम उठाने चाहिए और ये सराहनीय कदम के लिए हम इनको बहुत बधाई देते हैं। आगे हम और लोगों का सुनना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, तो हमें और लोगों से समझने की जरूरत है कि वहां पे लोगों ने जो किया तो वो कितना अच्छा है और क्या उसके आगे और उनके क्या स्टेप होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया कहकशा जी। इस बीच में हमारे साथ में बानो हरालू जी जुड़े हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ में आप जुड़ी हैं। अभी जो हम लोगों ने बातचीत यहाँ पर की, आपने मुझे कुछ जो रेफरेंसेस दिए थे, मैंने टपेक्यू संगतम जो है जो प्रेसिडेंट, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो नेटवर्क के अंदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने जो है वोट से एब्सटेन किया है, हमने बहिष्कार नहीं किया है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दिया है उसके ऊपर हमारी सरकार जो है यस जो कह रहे हैं सीएम वो लिख करके भेजे ताकि जो एश्योरेंस है वो पूरा किया जा सके। और हमारे साथ में जो काहुतो जी है, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा इशू करप्शन से जुड़ा हुआ है और जो डेवलपमेंट जो है जो उस इलाके में नहीं हो पा रहा है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बनो जी? वी वेलकम यू फॉर दिस ऑन बहुजन संवाद। प्लीज यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और आप अगर हिंदी बोले तो बहुत बढ़िया रहेगा। You can unmute yourself. Unmute, please unmute yourself. Please unmute. Please unmute. Yes, please. It's fine now. Is it Now okay you now? can speak. Okay. I'm Yes, sorry. it's okay. Sorry for We can joining listen the to you. program so late. Yes, in between, I was just hearing all the comments, and I do agree with Mr. Kauto that there's a high level of corruption, and this has been I think it's been one of the issues that has plagued politics all over. But in a small state like Nagaland, it becomes all the more pronounced. But coming back to the issue that we are talking about, the ENPO abstinence from the voting, I think there's been a long sense of neglect in this region, and but also at the same time, I think at the root of it, I feel that the governance or the politics in Nagaland, I think we are a society still transitioning from self governance, self-village republics to a form of democracy and of a political system. And I think very often in that lots of things have got lost in translation. And for me personally, I would see that the weakness of governance and of political parties and the system really lies with the lack of education of the voters, that we do not know what is the power of our vote. We cannot translate, we are unable to see what is the impact of one single vote
in determining the destiny and the future of generations to come. And this has gone on, and unfortunately, in the past few decades, power and politics has come in, and it has really transformed the society, transformed not in a positive sense, but there seems to be an alienation that has come up where power now belongs to an elite class, and only when you have access to this power strength, this power sector, then only can you sort of like go ahead. So like what Kahuto said, like in the sense of the youth feeling this sense of knowing that this level of corruption is there, but being unable to break through. I think for me, it comes with really realizing, the power of the vote. And I think in that, there's a lot of education of what the vote really means. So there is, I think, a lot of education. Manoji, let me translate it for the viewers. बहुजन संवाद के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, भानु जी ने एक तो ये काहुतो जी ने जो कहा उससे अपनी सहमति व्यक्त उन्होंने की है, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने कहा है कि जो वहां की सोसाइटी, नागालैंड की जो सोसाइटी थी, उसका जो एक सेल्फ गवर्नेंस का जो तरीका था, वहां पर जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था थी स्वनिर्णय की, उसको अब जब वो लोकतंत्र के अंदर तब्दीली उसके अंदर हो रही है, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्य बात ये है कि लोगों को उस तरीके की ये शिक्षा नहीं है कि वोट का क्या महत्व है, और जो पावर है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक तरीके से वहां पर ज्यादा मैटर करती है। और उन्होंने कहा कि जो पावर है वो एक तरीके से लिटिस्ट हो गई है, मतलब कुछ लोग जो समाज के एक ऊंचे तबके के लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं या शक्तिशाली लोग हैं, उनके हाथ के अंदर पावर चली गई है। मुख्य तौर पर वो एम्फेसाइज ये करना चाहती हैं कि जो है वोट का जो महत्व, कि कितना महत्वपूर्ण वोट है और किस तरीके से उससे अपनी डेस्टिनी को बदला जा सकता है, अपने भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इस बात को जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना था या पहुंचाया जाना चाहिए था, अब वो नहीं हुआ है। प्लीज कंटिन्यू बानु जी। Yeah, so I think what we saw culminating in the abstinence of votings in 6 districts in Nagaland. Of course, this is not the first time that there has been polling boxes that have remained empty. If we go back to the history of Nagaland, there has been a return of empty ballot boxes. But we are talking about, since the creation of the state of Nagaland, this definitely is an unprecedented occurrence. And this is really, I feel, has been to draw attention to the plight of the situation, the lack of development and employment opportunities in this part of Nagaland, which is the eastern districts. So maybe you want to translate that, then I can say some more. Yeah, sure. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी इस तरीके से हुआ है कि जब खाली मतपेटियों को वापस भेजा गया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो ध्यान आकर्षित करने के लिए हुआ है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, देश का, दुनिया का, कि वहां पर किस तरीके की बेरोजगारी की किस तरीके की स्थिति है और एक तरीके से जो विकास वहां पर नहीं हो पा रहा है, उसकी ओर जो नागालैंड के लोग हैं, विशेष तौर पर इन 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I would I don't want to give a monologue, but just very quickly my thoughts on this. It may seem very strange for people on the outside of Nagaland to even imagine how can a state be so divided within itself. Eastern Nagas and the rest of Nagaland going to polls, Eastern Nagas not going to polls. But this, I would hope, is more a strategy than a feeling of complete alienation of the Eastern Nagas from the rest of Nagaland.
because we have been through thick and thin together in all these decades. But to come back to this occurrence of the abstinence of voting and not participating in the parliamentary Lok Sabha elections this time is also everybody has had a role in this, in the sense that the Eastern Nagaland has, in the 60-member assembly, they have 20 members are part of the 60-member assembly. And Rajya Sabha members of representing Nagaland have more often than not been representatives from the Eastern Nagaland. So their leaders are also their representatives whom they have chosen have also equal responsibility towards development of this Eastern Nagaland. And I think it also matters, like we also need to take into account why there has been so little development that has been that these leaders have been able to create in Eastern Nagaland. So in terms of the equation of power, the representation of Eastern Nagaland is not less from the other parts of Nagaland. They have also had representatives in the state assembly, and they have had also members of parliament in the Rajya Sabha from Eastern Nagaland. But what has pushed the needle, I would say, is that the promises of that their demands would be looked into, and this continuous denial of the demands being met has led to this, or at least hearing of their demands has led to this situation. And I think it is actually, we could perhaps draw parallels to what is happening in Ladakh today, where the promises made to the Ladakhis by the regime right now, the BJP, have not come to fruit, even though they have been promised a state in the last elections and the one before that, and it has come to this impasse right now in Ladakh. So similarly, the sentiments, I think, run very high in the Eastern Nagaland areas and amongst the Eastern Nagaland leaders, that until they really cry out loud their issues are not going to be addressed properly. So this. Okay, let me translate it. दर्शकों, जो बहुत सारी बात आपके मन में आ रही होगी, मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है भानु जी ने उसको स्पष्ट किया है। एक तो बात उन्होंने कहा कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो ईस्टर्न पार्ट जो कर रहा है वो पूरे नागालैंड से वो अलग होकर के कुछ वो सोच रहा है, अलग होकर के कर रहा है। ये एक किस्म की रणनीति है। उन्होंने कहा कि हम लोग साथ रहे थे, साथ अभी रहे हैं, हम लोग सब साथ हैं, लेकिन ये एक रणनीति है जिसके तहत ये किया गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 60 मेंबर्स की जो असेंबली है उसमें 20 सदस्य जो आते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट से आते हैं, यहाँ का एक रिप्रेजेंटेशन भी रहा है, राज्यसभा के अंदर भी रहा है। लेकिन मुख्य बात ये है कि जो जिस तरीके के आश्वासन दिए गए, उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसा लद्दाख के अंदर हो रहा है, कि लद्दाख के अंदर भी जो एश्योरेंस दिया गया था, वो एश्योरेंस जो है पूरा नहीं किया गया, और उसी के चलते वहाँ के लोग व्यथित हैं, आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, और उस आंदोलनों को आवाज देने का काम वहाँ के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरीके से जो ईस्टर्न जो एक हिस्सा है इस नागालैंड का, यहाँ के लोगों के द्वारा भी ये काम इसीलिए किया गया है ताकि ध्यान आकृष्ट किया जा सके। और उन्होंने कहा कि ये मुख्य बात ये है कि जो कुछ कहा गया है उन एश्योरेंसेस को पूरा
किया जाना चाहिए। और मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि एश्योरेंस तो जो बात मुझे अध्यक्ष महोदय ने कही थी, जो ENPO के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा था कि हमको एश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था कि हम लोगों को एक स्टेट फूड सेपरेट दिया जाएगा और हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स देने का काम किया जाएगा। और वो प्रपोजल उन्होंने बना के भेज दिया, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक अलग तरीके से बानो रालू जी ने जो है इस बात को हमारे दर्शकों के सामने बहुत स्पष्ट करने का काम किया। मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव उनका प्रेजेंटेशन था। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग बानो जी? I mean, I'm only just wondering what will take place now post these events, and of course, I don't know about Mr. Kahuto, but I think this was like perhaps a bargaining point which the Eastern Nagas have arrived at to have issues addressed within their which issues of development, of employment, of opportunities for their future generation to be addressed at the earliest and in the best way possible, and to be an example really of what development and progress should look like for people. जी, शुक्रिया बानो जी। बानो जी ने कहा कि ये जो पूरा ये ईस्टर्न उसके लोगों के लिए एक अवसर है, जब वो जो उन्होंने किया है, जो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके एकजुटता उन्होंने बताई है, अब ये उनके पास में अवसर है कि वो किस तरीके का प्रोग्रेस चाहते हैं, किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, डेवलपमेंट का क्या वो तरीका हो, किस तरीके का डेवलपमेंट हो, ये जो वो चाहते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। और ये अवसर आया है कि वो इस अपनी सोच को वो धरातल के ऊपर वो उतार सकेंगे। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस तरीके का अवसर जरूर मिलेगा। जिन बातों को रखा है केंद्र सरकार के सामने या देश के सामने, उसका जरूर ही असर पड़ेगा और उन्हें अवसर मिलेगा अपने जो रोजगार के सवाल को लेके, अपने विकास के सवाल को लेकर के, अवसर के सवालों को हल करने का। थैंक यू बानू जी। विल कंटिन्यू विद डिस्कशन। हम लोगों के साथ में अभी आपने सुना, प्रोफेसर आनंद जी की बात आपने सुनी थी, रविशंकर जी की बात आपने सुनी, कौतो जी की बात सुनी। हमारे साथ में सोडी जी जुड़े हुए हैं, बेसिकली वो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनकी एक टिप्पणी लें और डॉक्टर तिवारी जी की हम लोग टिप्पणी इसके बाद में लेंगे। जितेंद्र सिंह सोडी जी। धन्यवाद सुनील जी। देखिए, ये मसला चाहे नागालैंड का हो या लद्दाख का हो या फिर मणिपुर का हो, ये तमाम घटनाएं जो हमारे देश में हो रही हैं और जो किसानों का मसला भी है, इसके मूल में है जो केंद्र में बैठी हुई हमारी सरकार है, उसकी जो संवेदनशीलता की जो कमी है, खासकर जो बॉर्डर स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख है, वहाँ के लोगों का साथ जो आपने वादे किए, जो वहाँ का एस्पिरेशन है, उन सब की लगातार जो डिनायल हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आज ये सब घटनाएं जो हैं हमको सामने देखने को मिल रही। दूसरी बात जो है, केंद्र सरकार की और एक नीति है जो हमेशा हर चीज को अपने चुनावी फायदे से देखती है। चुनाव में वोट किस आधार पर मिलेंगे, यदि उसको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, मणिपुर के लोगों को दबाने से हमको हिंदुस्तान में वोट मिलेगा, तो वो वहां पर पूरी तरह से आंख मूंद के लगातार हिंसा होती रहती है और केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये जो एटीट्यूड है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए भी, देश के एकता के लिए भी ये बहुत खतरनाक है, जो हमको इतने दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा इनाम मिली। हेलो, बहुत अच्छा नंबर आया। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है? अंग्रेजी छोड़ के बाकी सब डिस्टरबेंस हो रहा है, देखिए तो। डॉक्टर साहब म्यूट कर लीजिएगा आप जी। थैंक यू। हाँ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी सर। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो खासकर केंद्र सरकार की जो नीति है, नागा की समस्या निश्चित रूप से बहुत पुरानी
वहाँ की समस्याएं हैं। लेकिन अभी जो इतना उभर कर सामने आई है, उसका कारण अभी जो असंवेदनशीलता है केंद्र सरकार की, इनसेंसिबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। यदि जैसा कि अमित शाह जी ने आके जो उनसे वादा किया था स्टेटहुड अपना काउंसिल का, उनको अधिकार देने का, वो उस पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यही बात लद्दाख में हुई, जो 6 शेड्यूल में वांगचुंग से उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम आपका स्टेटहुड देंगे, वो वहां पर नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, और इसके मूल में सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग जो है मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, खासकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट है, ये सब मेन स्ट्रीम में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को चाह रहे हैं राष्ट्र के अंदर में। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका एक फर्ज बनता है कि वो सबको उनकी हिस्सेदारी दे और देश के मेन स्ट्रीम में सबको शामिल करे जो चीजें नहीं हो रही हैं। आपको हम बता दें, उत्तराखंड में भी कुछ गांव ने उत्तराखंड में भी चुनाव का बहिष्कार किया है। वहां पर भी पोल नहीं किया लोग, क्योंकि वहां पर जो सड़क बनाने का और जोशीमठ का जिस तरीके से वहां पर भूस्खलन हुआ और सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, जिससे उत्तराखंड में भी लोगों में एक नाराजगी है। तो इसके मूल में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे संविधान के, उनके प्रति जो लापरवाही है केंद्र सरकार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब घटनाओं को। मैं इसी नजरिए से देखता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहूंगा तिवारी जी कि मैं एक प्रोफेसर आनंद से एक टिप्पणी और कहूतो जी से एक टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद में आप इसको समाप्त कर दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर आनंद जी, मैं चाहूंगा कि आपने बानो जी की बात आपने सुनी, कहूतो जी की बात आपने सुनी, मैं चाहूंगा कि आपकी एक टिप्पणी इसके ऊपर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रोफेसर आनंद। ये बहुत जरूरी है कि कहूतो जी और बानो जी ने जो कहा उसको सारा देश सुने। खासतौर पर हमारे शासक समाज को ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र में आस्था है, भारत के भविष्य में भरोसा है, भारत के साथ एकता का आग्रह है, और उसके बावजूद धोखा हो रहा है। इस मोह भंग का जो प्रदर्शन हुआ है, वोट के बहिष्कार तो नहीं, वोट में अनुपस्थित रहने का, ये बहुत जरूरी विरोध था जो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और विकास को हासिल करने के लिए इनको करना ही पड़ा। अब बाकी देश की जिम्मेदारी है, खासतौर पर देश की लोकतांत्रिक ताकतों की और राष्ट्रीय एकता में भरोसा रखने वालों की, कि वो इनके साथ खड़े हों। और मैं बहुजन संवाद को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस काम को लोगों को लोक शिक्षण की जरूरत है। और जैसा कहा गया कि इन्होंने ज्ञापन दिया, सरकार कहती है कि हमको उस ज्ञापन से कोई विरोध नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्री को, अमित शाह को बताया, अमित शाह को अब जवाब देना चाहिए कि ये लापरवाही क्यों हुई है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कहूतो जी, प्लीज if you want to make any comment on this, please do. I'm so privileged to be in the company of so many understanding and learned people tonight. Mr. Sodhi brought up the farmer thing, no? Unrest. So even I was watching those things, and so this mainstream media, no, so sold out. Madam Bano is one of our pioneers in this mainstream media. When there was real journalism in India, now it is gone, and only YouTube channels like yours, and I watch many. You know, these are the only sources of truth here. So my message to people across, not only India, across the world, is to stop depending on this mainstream media. They're feeding us lies. Always their purpose is not to find out what is behind issues, but to create issues. And the people of India must know that India is not such a fragile state that we have to worry about China, about Pakistan, about Khalistan, about
separatism, about Muslims. No? I have said in many platforms across media in Nagaland that Hinduism is the most tolerant religion in the world, and that this RSS, BHP, Bajrang Dal, no, BJP, Hindutva is completely different from Hinduism as a religion. They are using Hinduism as a means to grab power. So we must understand that, and we should not fall for their lies. So that is all I have to conclude. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। साथियों, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने एक तो ये कहा है कि बानो जी हमारे यहाँ की बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम उनके लेखन के अंदर जो हमारे नागालैंड के लोगों की जो भावना है उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन इस तरीके का मीडिया, जिस तरीके का मीडिया के अंदर जब वो सक्रिय थी, जब हम तब जो देखा करते थे वो आज हमको देखने को नहीं मिलता है। और होना ये चाहिए था कि इस सवाल को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आगे आना चाहिए था और इसके अंदर कोई पृथकतावाद या कोई अन्य चीज को देखने की बजाय हमारे सवाल क्या हैं, उन सवालों के ऊपर जो है मीडिया को सोचना चाहिए था, हमारे मुद्दों को पूरे देश के सामने ले जाने का काम करना चाहिए था। फिर उसके बाद में उन्होंने ये वाली बात भी कही है कि हम ये मानते हैं कि भारत सरकार को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना इस बात का उसे कोई डर होना चाहिए कि चीन क्या, पाकिस्तान क्या या खालिस्तान क्या या पृथकतावाद क्या, उस सब की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की जो अपने सवाल हैं उन सवालों के ऊपर जो है ध्यान देने की जरूरत है, जो समस्याएं हैं लोगों की उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उन समस्याओं को हल करने की जरूरत है, उसका रास्ता निकालने की जरूरत है। और उसके बाद में फिर उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि जो कुछ लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम सारे संगठन हैं, वो जो वास्तव में हिंदुत्व है उससे अलग हट करके वो उसको पावर को ग्रैब करने के लिए उसका इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोहतू जी ने पूरी बात अपनी यहाँ पर रख दी है। मैं चाहूंगा कि रविशंकर जी आप भी, अगर हमारा समय तो कंप्लीट हो गया है लेकिन आपकी हम चाहेंगे कि एक टिप्पणी आपकी भी ले लें क्योंकि समय तो हो गया है, और उसके बाद में अंतिम टिप्पणी तिवारी जी करें। आपको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट कीजिए। जी मुझे लगता है कि कौतो जी और ने जो कहा, और बानो जो कि हम लोग एक साथ रिपोर्टिंग करते थे गुवाहाटी में, वो दूरदर्शन की पहली महिला रिपोर्टर थी, तो उन्होंने जो कहा और वो नागालैंड में है, और हम लोग भी गुवाहाटी से चूंकि नागालैंड के इशू को बहुत ही दिनों से और बहुत गंभीरता से देखते और समझते रहे हैं, तो जो चीजें